आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को देखा होगा एफडीज में इन्वेस्ट करते हुए, अभी भी उनके लिए वही प्रेफरेबल होता है। दैट यूज्ड टू बी द सेफेस्ट ऑप्शन बैक देन। और तब इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। अभी एट योर डिस्पोजल यू हैव सो मैनी वीडियोज, देयर आर सो मैनी पीपल हु आर टीचिंग फाइनेंस ऑनलाइन, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, सो यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड। आपके पेरेंट्स के टाइम पे उनके पास ये सारी रिसोर्सेज नहीं थी, दे वर जस्ट सेविंग मनी, पुटिंग इन एफडीज और अदर सेफ ऑप्शंस। But right now, at your disposal, you have everything you need to start investing. And investing, trust me, is really, really, really important. You are never going to get rich enough by earning money, by doing some job, by working somewhere. You can earn money through that, but you are not going to gain true wealth. The only way that you can become wealthy is when you are making money while sleeping also. When you don't have to constantly put in the hours, when you do not have to constantly put in work to earn. Wealth is when you own assets who work for you. When you have invested somewhere. It is only when you own a piece of some company or own a piece of something that is valuable that you can attain true wealth. मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, एंड जो बुक्स इसके लिए फेमस है फॉर फाइनेंस, फॉर पर्सनल फाइनेंस और बेसिक विजडम के लिए, फॉर एग्जांपल रिच डैड पुअर डैड, या फिर अभी मैंने रिसेंटली नवल रविकांत सर की बुक पढ़ी है द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। एंड इन दोनों बुक्स में और इसके अलावा मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, हर किसी बुक में इफ़ यू वांट टू गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इफ़ यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या फिर इफ़ यू वांट टू गेन वेल्थ, इफ़ यू वांट to become rich, you have to gain wealth and you need to start investing. So investing, my friends, is something that is really important, and especially for all people who are in their 20s, who are just starting out. It's a great time and you have all the resources at your hand, so why don't you just start? Investing is the only way that you can make your money grow non-linearly, and you can then retire early. And by retiring, I do not mean कि अच्छा you are giving everything up, going away, no, nothing like that. By retiring means that you no longer sacrifice your today for a better tomorrow. Okay, that is not my line, मैंने किसी बुक में पढ़ी है, but that makes sense. Retiring means कि जैसे अभी you are working for your future, you are investing or saving for your future. Retiring is कि you have enough, you have accumulated the assets, then also you work. ऐसा नहीं है कि you are giving everything up. Then you work, but then you work because you like working. Then you work on things that you want to work on. It's like that. And since the part to that, to attain that, to living in the present, living in the moment, you need to accumulate wealth first, and for that you need to start investing. And so that now that we have cleared that out, I'm going to share with you some easy ways to start investing for beginners. And now see, I do not have this finance background. Even I have invested through these means. So what I'm trying to say is that investing these days is super easy. You just need to do a little research, you just need to have a little knowledge, and you can do that. So let's start. Okay, so there are many ways that you can invest, obviously, like real estate. You can invest in startups, angel investing, you can become a venture capitalist. There are many ways to do that, but ये सारा it's a little complicated to get into these things. In this video, I'll be sharing with you the simplest way, जो आप आराम से घर बैठे बैठे, people who are just starting out, आप लोग आराम से इनमें invest कर सकते हैं, and super easy thanks to internet. Okay, so the first and probably the easiest option is to invest in stock markets. तो स्टॉक मार्केट्स में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट बस यही है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए. यू शुड एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए मार्केट के बारे में, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उस कंपनी के ऊपर और मार्केट में क्या चल रहा है, all those things. And I know it can get a little tedious, especially अगर आप लोग को पता ही नहीं कि रिसर्च कहाँ पे करनी, कैसे करनी है. So but then there's another great thing that I have come across, and it's you can invest in portfolios. So portfolios are basically instead of मतलब अगर आप portfolios के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो आप एक कंपनी में नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होंगे.
now like these portfolios can be one of IT companies, so leading IT companies होंगी, उसमें किसने क्यूरेट किया होगा, ऑब्वियसली वो पोर्टफोलियो ऐसा नहीं होगा कि अच्छा बस टॉप 10 IT कंपनीज डाल दी, इट्स नॉट लाइक दैट. सिमिलरली अगर आपको लगता है कि एनर्जी सेक्टर बूम होने वाला है, सो एक एनर्जी सेक्टर का पोर्टफोलियो का आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. सो इस तरीके से एक वो होता है ना, यू कैन डाइवर्सिफाई. दिस इज़ हाउ यू कैन नॉट कीप योर एग्स इन वन बास्केट, एंड आपके लिए ईजी रहेगा इन्वेस्ट करने के. ऑब्वियसली यू कैन डू ऑल दिस ऑनलाइन. अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो दे आर एप्स लाइक ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक. मैंने तीनों को ट्राई किया है, यूज़ किया है, एंड तीनों का इंटरफेस बहुत ईजी है. सो आप इनमें से किसी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आपको इन पोर्टफोलियोज़ के थ्रू इन्वेस्ट करना है, जिनके बारे में भी हमने बात की, तो इन ऐप्स को लाइक ज़ीरोधा एंड ऑल, आप इन ऐप्स को स्मॉल केस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड थ्रू दैट यू कैन इन्वेस्ट इन दीज पोर्टफोलियोज़ ऑल्सो. वैसे दीज ऐप्स आर लाइक super simple, super easy to use, but in case you have any doubt, obviously if you are starting out you might get stuck, so you can DM me on Instagram, or you can just message me, email me, anything, and I'll help you out. Now second option somewhat similar is that you can invest in mutual funds. अभी मैं इस वीडियो में उस पर नहीं चाहूँगी कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या मे बी अगर डाउट होगा सो विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट. बट म्यूचुअल फंड्स, लाइक इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स इज़ रियली ग्रेट फॉर बिगिनर्स. आई डिड दैट बिकॉज उसमें हमारा रिस्क नहीं होता ज़्यादा. तो अगर जैसे हम लोगों को नॉलेज नहीं है उसके बारे में, सो आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो. जो म्यूचुअल फंड है उसका एक मैनेजर होगा, उसको उसके बारे में पूरी नॉलेज रहती है. ही नोज़ द मार्केट. वो डिसाइड करता है कि कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट हो रहा है, एंड यू कैन सेलेक्ट उनमें, मतलब फंड्स में से कि ज़्यादा रिस्की आपको सेलेक्ट करना. मीन्स ऑब्वियसली मोर रिस्क मोर गेन, इट्स लाइक दैट. सो आप मतलब अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कितना रिस्क चाहते हो, ऑल दैट आप उससे कंपेयर कर सकते हो. देन यू कैन चूज़ अ फंड एंड इन्वेस्ट. सो दिस वन इज़ रिलेटिवली लेस रिस्की. आपको कम रिसर्च करनी होगी, एंड अगेन बहुत इजीली आप कर सकते हो. जो हमने पिछले एग्जाम्पल में ऐप्स की बात की थी, फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, आप उनके थ्रू ही म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टोज एंड NFTs. I know this might be sounding a little scary because अभी बहुत volatile market है, you don't know how things are, but with more digitization that is coming in and everything going digital, governments and everyone, they are becoming very acceptable of this, and future में इसका काफ़ी अच्छा market हो सकता है. So you can invest there, it is booming right now and it can be a great start. You do not have to, ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल ही सारा का सारा आप इन्वेस्ट कर दो, but yeah, you can start with this. एंड यहाँ पे क्रिप्टो के लिए भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ एप्स लाइक CoinSwitch, WazirX, Vault, एक्सेट्रा. ओके, सो दीज आर जस्ट 3 सुपर सिंपल, सुपर इजी वेज जिससे आप घर बैठे बैठे बिना किसी मिडल मैन के आराम से ऑनलाइन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट रिमेंबर, दिस इज जस्ट द स्टार्ट. डू नॉट स्टॉप देयर. इन्वेस्टिंग इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन वेल्थ. हर बुक में यही बताया गया. सो नाउ आई हैव बिकम सीरियस अबाउट दिस. ओके, आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग नाउ. आई in fact got the book The Intelligent Investor. I have not got to it, so let's not get there. बट बाकी बुक्स मैंने जो पढ़ी हैं उनमें मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई टॉक्ड अबाउट नवल रविकांत's बुक और रिच डैड पुअर डैड. सो इन्वेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. इवन वॉरेन बफेट्स की जो उनकी एडवाइस होती हैं सब यही है कि यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, नॉट जस्ट इन मार्केट कि आपको जो लग रहा है कि आज ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है. स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन कंपनीज, इन देयर फिलोसफीज, इन देयर लीडर्स. ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू गो बिग इन द वेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. आप जैसे स्टार्ट करोगे यू विल ऑब्वियसली लूज. जो भी इन्वेस्टर होता है वो स्टार्टिंग में दे लूज, बट दैट इज़ हाउ यू लर्न, दैट इज़ हाउ यू विल अंडरस्टैंड द मार्केट. तब आप गलतियाँ करोगे तभी आप उनसे सीखोगे, एंड देन यू विल बिल्ड ऑन दैट. सो डोंट लेट दीज इनिशियल सेटबैक्स डिसहार्टन यू, और कि नहीं ठीक है इन्वेस्टिंग तो बहुत रिस्की है. जैसे लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग तो सट्टा है. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करोगे तब ही ये सट्टा है. अगर आप इफ़ यू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, अगर आप ढंग से कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, हर चीज़ पढ़ रहे हो, देन इट्स नॉट दैट. इट्स बेसिकली यू आर मतलब आप किसी बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो, राइट. सो या, hopefully after watching this video, even people who do not invest at all, you can start. You can start very small. You don't have to go big, but do start. This is very important.
And yeah, if you have any doubt, you can reach out to me by email, or you can DM me on Instagram, anywhere. You can reach out to me and I'll try to help you out to the best of my knowledge, obviously. But yeah, do start investing, guys. It's really, really important. If all these people are saying that invest, it's actually important. So yeah, and whatever else I learn, I'll let you know. Thank you so much for being here. I'll see you in my next. Bye bye.